वेलकम बैक टू nextofficer.com। आज हम हमारी जो सीरीज है लेक्चर्स की, उसका फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर में हम घुसने वाले हैं। ये फिजिक्स चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इसके पहले जो भी हम लेक्चर्स पढ़े हैं उन सभी में इंट्रोडक्टरी था और मैथमेटिकल टूल्स हम कुछ डिस्कस किए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जाके वो देखिए, फिर ये स्टार्ट कीजिए। ओके, let's have a look on the syllabus from the various examinations on this particular topic. Okay, so you can see this is the syllabus of West Bengal JEE, this is the JEE mains, and this is the NEET. You can take screenshots and take print it out. If you haven't downloaded the syllabus from the description box, you can take screenshot as well. That's your wish. Okay. Okay, so acha, just tell me, the first topic was, you can say, the physical world, right? Is the first topic is physical world. What is the physical world? Physical world is, you know, the things, the world we can feel by our senses. It's called physical world. जो कि हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारे वर्ल्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। तो उसमें है क्या? उसमें कुछ क्वांटिटीज हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल वर्ल्ड में जो जो पैरामीटर को हम मेजर कर सकते हैं उसे ही हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि समय, मैं समय बोल रहा हूं, याद है वो वाला? हाँ, वो समय, टाइम। जैसे कि लेंथ, आपका कुछ एक हाइट तो होगा, है ना? आपका मास तो कुछ होगा, आपका वजन, वेट, मास तो कुछ होगा। हालांकि वेट और मास इज नॉट सेम, देयर इज सम differences of course. Then the force, work done, etc., right? So these parameters are can be measured by different type of measurement devices, right? So what is measurement then? What is measurement? Measurement is something we can compare with a standard thing, like you can say that I have a 1 meter bar and I can compare with that 1 meter bar with anything is the same length of the 1 meter bar. We can say that the thing is 1 meter length, right? This is just measurement. So now, you know, what I mentioned before is 1 meter length. Here is the, what is the meter thing here? Meter is unit. This is unit. All physical quantities are measured to the respect of standard magnitude of the same physical quantities, and these standards are called units. Example: second, meter, kilogram, etc. I have okay. So what are units? All physical quantities are measured with respect to standard magnitude of the same physical quantity, and these standard are called units. Example: second, meter, and kilogram, etc. Right? So that should be our basic properties of unit. Let's have a look then. See, the basic properties is, the first one is they must be well defined. You know, they must be well defined. It's very important. Like kg is always be a unit of mass, right? Meter is always be a unit of length, like that. And the next is they should be easily available and reproducible, right? So these are the basic properties which we have to take measures, you know. So
Okay, let's have a look on the fundamental quantities. This is called fundamental quantities. I have a chart. Okay, I'm just making this chart up. मैं ये chart जो है ये बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बरतिएगा यहाँ पे. तो फर्स्ट कॉलम वुड बी फिजिकल क्वांटिटीज. Right, then units, the notation. The first one is, let's say, mass. तो मास के लिए हम सभी जानते हैं कि एसआई में मास का जो यूनिट है वो है केजी. ये बहुत छोटे से, हम छोटे जब थे तब से हम पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, है ना. मास है केजी. अच्छा अच्छा, मास का अभी सीजीएस पे मास का यूनिट क्या होगा, वो होगा ग्राम. सभी को पता है ना. नोटेशन मास के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट, अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा. ओके, अब लेंथ. अच्छा, लेंथ के लिए लेंथ का यूनिट क्या है एसआई पे, हम सभी जानते हैं मीटर, और सीजीएस पे सेंटीमीटर. और लेंथ का नोटेशन क्या होगा, कैपिटल एल. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट जो है वो है हम लोग का टाइम. राइट. अच्छा, टाइम का एसआई और सीजीएस में दोनों में ही यूनिट जो है वह सेकंड, स्मॉल एस. स्मॉल एस से हम ये डिनोट करते हैं. अच्छा, और टाइम का नोटेशन क्या है, वो है कैपिटल टी. एज सिंपल एज जस्ट मास, लेंथ और टाइम का जो इनिशियल्स है वही है इनका नोटेशंस. ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर देन. व्हाट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए हमें हमें ये पता है कि टेम्परेचर के लिए जो यूनिट होता है एसआई पे वो है केल्विन, कैपिटल के. ये डिग्री और सेल्सियस बाद में आया था, मैंने वो तो बाद में आएंगे, वो हम पढ़ेंगे. लेकिन एसआई में वो होगा केल्विन, और सीजीएस में आएगा डिग्री सेल्सियस. राइट. और नोटेशन पे क्या होगा देखिए, अब बट टी तो नहीं दे सकते क्योंकि टी तो टाइम लेके चला गया. तो टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं थीटा. वो एंगल वाला जो थीटा करते हैं ना, वही थीटा. यहाँ पे बस नोटेशन के लिए यूज करते हैं कि टेम्परेचर का नोटेशन होगा थीटा. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट लेते हैं, चलिए, करंट. ठीक है, करंट का एसआई पे यूनिट होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है. ठीक है, और इसका सीजीएस और एसआई में दोनों में ही कैपिटल ए ही यूज होता है. ठीक है. अच्छा, नोटेशन के लिए हम कहीं कहीं जगह पे आई भी यूज करते हैं और कहीं कहीं जगह पे ए भी यूज करते हैं. कैपिटल आई और कैपिटल ए, कुछ भी यूज करो चलेगा. ठीक है, तो ये था हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली. ठीक है, ठीक है, चलो. अच्छा,
तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है इसे तो हमें डिराइव करना होगा, है ना। कैसे डिराइव करेंगे? अब देखो डिराइव भी करना है। अब अच्छा एक बात बताओ, जो डायमेंशन मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हो गया, अब उसका डायमेंशन देखते हैं। चलो एक एक करके डायमेंशन देख लेते हैं, क्या क्या डायमेंशन होगा यहाँ पे। ओके, डायमेंशंस। अब व्हाट इज डायमेंशन एक्चुअली? तो देखिए डायमेंशन का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, द पावर of base quantities that enter into the expression of a physical quantity is called the dimension of okay, right. अच्छा, let's take an example. Okay, let's an example of just like force. We all have the definition of force. Force is the product of mass and the acceleration, right? If you have done the previous class, the mathematical tool class, there we have some glimpse of acceleration. हम ये पढ़े थे कि एक्सेलरेशन होता क्या है, वहां पे हम पढ़े हैं। अच्छा, तो एक्सेलरेशन को, अच्छा यहाँ पे देखिए F इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्चुअली एक्सेलरेशन है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये हम और क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अच्छा, तो अभी इसका डायमेंशन होगा क्या? तो इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स, इसका डायमेंशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एम का नोटेशन था कैपिटल एम मास के लिए, लेंथ के लिए था कैपिटल एल, डायमेंशन होगा एम एल टी पर -2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रटना पड़ेगा। अगर इसे आप याद रखिए तो बहुत बड़ा बड़ा जो डायमेंशन है वो आराम से आप निकाल सकते हैं, बस इजी से। ठीक है ना। फोर्स का आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पर -2, फोर्स का डायमेंशन एम एल टू पर -2, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पर -2, फोर्स का डायमेंशन एम एल टू पर -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स का हो गया, तो चलो कुछ और देख लेते हैं। चलो एनर्जी का देख लेते हैं, एनर्जी क्या होता है। ठीक है, फोर्स का हो गया एम एल टू पर -2। अब देखते हैं एनर्जी। अच्छा, इसके पहले बताइए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी? बताइए एनर्जी क्या होता है? कुछ नहीं होता। एनर्जी इज
द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, माने वर्क, आपका एनर्जी जितना होगा आप वर्क उतना कर पाएंगे, है ना। तो वर्क और एनर्जी लगभग सेम है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन का फॉर्मूले के साथ सेम। डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके तो ये हो गया हम लोग का एनर्जी। तो अभी एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन हमें याद है ना, एम एल टी पर -2। अच्छा, डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होगा, बस एल, वो तो लेंथ ही है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर -2। तो आ गया एनर्जी का डायमेंशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। होता क्या है, होता क्या है, हाँ देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन क्या लिखा है, whenever the dimension of a physical quantity is equated with its dimensional formula we got a dimensional equation। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी से डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकाल पाए तो वही हो जाएगा हम लोग का डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, अभी होमोजीनिटी प्रिंसिपल ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा सुनने में, लेकिन उतना टफ है नहीं, बिलीव मी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। होता क्या है यहाँ पे देखिए, ये प्रिंसिपल होमोजीनिटी कह रहा है कि देखिए, दो अलग अलग डायमेंशनल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि हम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर सकते हैं, क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन मैं वेलोसिटी प्लस टाइम नहीं कर सकते, ये होगा ही नहीं, ये फॉरबिडन है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, यही बोला गया है बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी में। और क्या बोला गया है, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है यहाँ पे, मान लीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू सी। अगर ये इक्वेशन है तो क्या होगा, देखिए, a का डायमेंशन जितना होगा b का डायमेंशन भी उतना ही होना चाहिए और c का डायमेंशन भी वैसे ही होना चाहिए। अगर तीनों का डायमेंशन सेम हो तो ही हम ये इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा एग्जाम्पल करने में। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द इलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय k इक्वल्स टू as square, where s is the distance traveled by the particle. Determine the dimension of a. Very easy, right? देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, k is what, k is energy, k is energy, a equals to a square, ये हमें गिवन है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं। k क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या था, m l स्क्वायर टी पर -2 था ना, इक्वल्स टू a हमें पता नहीं है इसीलिए एज इट इज a को रख देते हैं, इनटू s, s क्या है, क्या लिखा है, व्हाट इज s इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो s हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। तो a और क्या हम लिख सकते हैं, अगर इसको जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, मास l स्क्वायर टी पर -2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर स्वाहा हो गया, तो क्या पड़ा रहा, m पावर 1 l पावर 0 और t पावर -2, राइट। तो यही है, वेरी सिंपल।
ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। देखिए सरफेस टेंशन क्या है नहीं है ये मैं टेक्निकलिटी में अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि फ्लूइड चैप्टर में सरफेस टेंशन एक अलग टॉपिक है, वहां पे हम एकदम डिटेल्स में कवर करेंगे, वो चीज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, तो सरफेस टेंशन में क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये होता है सरफेस टेंशन, है ना? ओके, तो इसका डायमेंशन क्या होगा फिर? इसका डायमेंशन क्या होगा? अगर एम एल टी के बारे में ही पहले देख लें तो क्या होगा, देख लेते हैं। फोर्स के लिए क्या है, याद है ना, एम एल टी पर -2, ये याद करना है, एम एल टी पर -2। लेंथ के लिए एल, तो एल एल हो गया स्वाहा, तो क्या मिलेगा, एम टी पर -2, राइट? ओके, नाउ सपोज, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ मुझे ई वी और टी से मुझे ये सॉल्व करना है, मतलब इसे इक्वेट करना है, ठीक है? चलो मान लेते हैं कि सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा ई पावर ए, वी पावर बी एंड टी पावर सी। सपोज ऐसा हुआ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वल्स टू है m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2, है ना? अच्छा, एक बार और, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, याद है क्या? m l स्क्वायर t पावर -2, याद आ रहा है? तो ये होल पावर हो जाएगा a इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ t इनवर्स 2 पावर b। अच्छा, टाइम के लिए t पावर c, इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, m l पावर 0 t पावर -2। अच्छा, देखो अब मैं सिंपल कैलकुलेशन करने वाला हूं, ये देख लीजिए क्या हो रहा है। सिंपल कैलकुलेशन, मुझे a b और c चाहिए, तो यहां से कैसे a b और c आ रहा है ये देखिए, ठीक है? देखिए मैं यहाँ पे क्या a लिख सकता हूं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इनटू में l पावर क्या है, l पावर ट्वाइस ए प्लस बी लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस ए प्लस बी, इंटू टी में क्या लिख सकता हूं, माइनस ट्वाइस ए प्लस सी, इक्वल्स टू m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2। अच्छा, अगर दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो मुझे कुछ ये मिलेगा, मुझे मिलेगा a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, है ना? अच्छा, और क्या मिल रहा है, ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे और क्या है, a इक्वल्स टू 1 है, 1 अगर पुट कर दू तो क्या होगा, 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b इक्वल्स टू -2, यस और नो, राइट? ओके, और क्या है, तो b इक्वल्स टू -2 हमें मिला। अच्छा, और क्या है, -2a प्लस सी इक्वल्स टू -2, है ना? तो -2a का वैल्यू मुझे पता है, मैंने a का वैल्यू मुझे पता है, तो क्या होगा, -2 प्लस सी इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस स्वाहा, तो c इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ किया लगता है, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी,
सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए कहाँ पे गड़बड़ हुई है, देखिए यहाँ पे टी पावर में -2 और ए, तो -2a हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे -b करना भूल गया, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा -b, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस सी माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ट्वाइस ए का अगर वैल्यू पुट करूं तो 1 है, तो -2। अच्छा, बी का वैल्यू मैं पुट करूं तो +2 हो जाएगा, बी का -2 है ना। ओके ओके। हम्म। ओके, तो ये पे इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ये होगा -2। तो प्लस सी इक्वल्स टू -2, तो ये वहां हो गया +2 -2, तो सी इक्वल्स टू क्या रहा, -2। तो ए बी और सी हमें मिला। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, ई पावर ए का वैल्यू कितना है 1, वी पावर बी ये हो जाएगा -2, और सी पावर है -2, हो गया। तो ये कौन सा है, ई पावर 1 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 ई पावर 1, ये तीनों हो सकता है। वी पावर -2 वी पावर -2 वी पावर -1 नहीं होगा, वी पावर -1 नहीं होगा, वी पावर -2 हो सकता है। अच्छा, सी पावर, सी नहीं, ये टी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है आज मेरा। अच्छा, ये टी। अच्छा, टी पावर -2 है, ये -1 नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा। तो डी वुड बी द आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक करके होगा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन P equals to A minus T square divided by Bx, where P is pressure, X is distance and T is time, R। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मुझे A बाई बी का डायमेंशन चाहिए। तो A बाई बी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, इक्वेशन क्या दिया है, P इक्वल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स, है ना। अच्छा, इससे क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, T टाइम्स P इंटू एक्स, है ना, इक्वल्स टू क्या मिला, ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा। ओके, तो ये ए माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि अगर प्रिंसिपल होमोजेनिटी को माने तो क्या हो सकता है कि राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही लेफ्ट हैंड साइड का भी डायमेंशन होगा, और राइट हैंड साइड में ए माइनस टी स्क्वायर हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, टी तो यहाँ पे टाइम है ना, तो ए का जो डायमेंशन होगा वो भी होगा मेरा टी स्क्वायर, तो ही हम ऐसा प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ पी इंटू बी इंटू एक्स, ये मेरा डायमेंशन कितना आया, टी स्क्वायर, आराम से। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर पी इक्वल्स टू प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी पर -2, और एरिया के लिए एल स्क्वायर। तो अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन आएगा एम एल इनवर्स टी पर -2,
आप सिंपल कैलकुलेशन करके देखिए, ये आएगा। ठीक है, ओके। तो b इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई p इंटू एक्स, है ना। तो टी स्क्वायर एज इट इज, p के लिए m l इनवर्स t पर -2 और x के लिए l। ठीक, अच्छा, तो यहां पे क्या हो रहा है, l l स्वाहा हो गया, ये l -1 यानी +1। तो b के लिए, b का डायमेंशन ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, m पावर -1 इंटू टी पावर 4, ये होगा b का। अब therefore what is the a by b, a by b के लिए क्या होगा, a के लिए हमें पता है कि ये टी स्क्वायर होगा, है ना। तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इनवर्स टी पावर +4, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल m टी पावर -2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। ओके ओके ओके, तो यूनिट और डायमेंशन का जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा एरर एंड एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एरर, एरर से आपका जेई मेंस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और हालांकि आईआईटी में भी कुछ क्वेश्चन आता है, मैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।